सो एक मेरा जो मेन क्वेश्चन है, आपके पास ज्यादा फीमेल्स आती है कि ज्यादा मेल आते हैं? सच बोलूं, मैंने शुरुआत की थी ये सोच के कि सिर्फ फीमेल्स के साथ काम करूंगी। अच्छा, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ that it's no longer about the female or the male, it's about the giver in a relationship who ends up feeling at the receiving end. हाय पुनीता। Good afternoon, Reen. How are you? Oh wow. Okay guys, so for everyone joining into the Evolvement podcast, Punita is India's first, get it? India's first divorce recovery coach. She's also the modern Mirabai. Punita, you have to tell me, before I even talk about the Evolvement podcast, I need to know about your modern Mirabai. I love that. What is modern Mirabai? Wow, okay, thank you. And I'm feeling so happy already to be here. Thank you for giving me this opportunity. Modern Mirabai, the name, frankly, has chosen me. I will not take the credit. I did not find the name. The name has chosen me to take the legacy forward, and that is why it has that kind of a stickiness and the love it is getting from the people. I'm just a medium. The philosophy behind modern Mirabai is the royal princess who was once born in the olden days, where she had कृष्ण की भक्त थी वो, और महलों में पैदा हुई और अपने ही जिंदगी, अपने ही तौर तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, मग्न होके फाइंडिंग हर हाईएस्ट सेल्फ, लविंग टू हर ट्रूएस्ट सेल्फ व्हाट शी बिलीव्ड इन। और शायद वो दुनिया उस समय इवॉल्व्ड और रेडी ही नहीं थी उसकी उस सच्ची मोहब्बत को एक्सेप्ट करने के लिए, उस डिविनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके घर वालों का साथ उसे नहीं मिला, उसकी शादी भी करवाई गई। इवेंचुअली थ्रू ऑल दिस स्टेजेस शी चोज टू बी courageous, she chose to live the life the way she wanted, and her resilience is what really inspires me. She believed in what she was and what she wanted to achieve of her life, irrespective of what people around her said or wanted her to do. She chose to be her highest self. Wow. That is the philosophy of courage and resilience which resonates the most with me. And when I was on my healing journey 8 years back, there was a song of my Guruji which I used to listen on a repeat mode, which said, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, which meant Meera is the soul and Prem is the ultimate, the God, the almighty one, nature, whatever you call it. I am willing to do whatever it takes, God, please pull me out of this pain. Wow. मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, मुझे बस इस दर्द से निकालिए. That was the state of complete surrender to you leading my life, you the Almighty. And that is something I really resonated with, surrendering to the mentor, to the God, to the Almighty, who knows, who believes that there is good coming your way. Wow. Just go with the flow. So, जब ये जो evolvement podcast है, you will wonder कि why evolvement? Everything in my life, the way I can see that, last 20, 22, 23 साल जो मेरे लगे हैं, ये मेरी खुद की इवॉल्वमेंट जर्नी हुई है। सो अब ये मुझे समझा है कि हमको इवॉल्व ही करते रहना है, एंड इस इवॉल्वमेंट पॉडकास्ट का हमारा जो थीम है,
हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, लेकिन उन्होंने उसको फेस किया है, उसका सामना किया है और उसमें से वो निखर के आए हैं। और वो अब सिर्फ अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, अपने आगे पीछे अपना जो बागीचा है, अब वो उसको सुधार रहे हैं, अपने लोगों को सुधार रहे हैं। तो दिस इज माय earnest request to get such people on board. And मुझे पुनीता आप में वो चीज़ दिखती है। When I wanted to speak to you और हमारा जो हम लिटरली आई थिंक वो एनर्जी अगर मेरी किसी से मैच होती है तो आपके साथ मैच होती है। We have high energy happening and कहीं ना कहीं divorce is something, so I don't know whether you know it, but I am also a divorcee, and 2002 में मैंने डिसीजन लिया था टू लीव माय हस्बैंड और फिर डिवोर्स तो सब्सिक्वेंटली जब हुआ सब हुआ तो आज उसमें नहीं जाते हैं। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अबाउट मैंने तो जैसे हैंडल किया अब इतने लोग हैं और आज डिवोर्स कॉमन हो गया। मैंने जब किया था तब कॉमन नहीं था, मैं मतलब लिटरली वो अजूबा थी अपनी फैमिली में कि ये क्या कर रही है, बट आज मैं देखती हूँ तो मुझे एक मेरा जो मेन क्वेश्चन है, आपके पास ज्यादा फीमेल्स आती हैं कि ज्यादा मेल आते हैं? सच बोलूं, मैंने शुरुआत की थी ये सोच के कि सिर्फ फीमेल्स के साथ काम करूंगी। अच्छा, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ that it's no longer about the female or the male, it's about the giver in a relationship who ends up feeling at the receiving end. उसको लगता है कि उसकी जरूरतें की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जो गिवर होता है रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दर्द वो ज्यादा ले जाता है, और वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। और आज के तारीख में मेरे पास ज्यादा मेल हैं सरप्राइजिंगली जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, because women at some level are emotional and they are open, comfortable sharing their emotions, they end up finding some support. लेकिन men, they are taught, मर्द हो, बोलना नहीं है, अंदर रखो, be a man. तो उनको बोलना नहीं आता, उनको अपने इमोशंस को शेयर करना नहीं आता। दे फील शेयरिंग इमोशंस इज रॉन्ग एंड इट्स अ वीक पॉइंट। दे डोंट नो whom to talk. Women are social beings. They do find friends, relatives को फिर भी बोलती हैं। करेक्ट। मर्दों के लिए और ज्यादा मुश्किल है। So because these are one-to-one coaching counseling sessions, today I have a lot of men showing that courage, coming, opening up and talking about these issues which were such a taboo. Even mental, emotional, opening up, asking for help, which is such a taboo, coupled with divorce, which itself is a taboo. बहुत बड़ा courage एक चाहिए होता है. What do you think, Reem? No, what is your experience? I mean, yeah, that is very surprising. I know, men, see, I work with a lot of men for their success coaching. तो आपको पता है कि मेरा success coaching है, मुझे ज़्यादातर आदमी आते हैं, men, so I think 70% of the people I get are men and 30% women. Yeah, women have now started getting, that, so women had that dependency, कि हाँ हम we are dependent on men. ये कर रहे हैं करके, बट अब जाके औरतें भी उनको लग रहा है कि नहीं हम भी कुछ करें, हम अपने लिए कुछ करें ऐसे करके। सो दैट इज ऑल्सो एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है अभी मुझे भी और पर मुझे ये तो जब मुझे भी लोगों ने, जब मैंने भी ये डिसीजन लिया तो तब 2002 की बात है, मुझे सब लोगों ने पता है एक चीज पूछी, एक या दो चीज, कहते तेरे को मारता है, उसमें कोई ऐब है? ठीक है, अगर वो मार नहीं रहा है, कोई ऐब नहीं है, तो तुम उसको क्यों छोड़ रही हो? तो ये इतने उठपटांग सवाल जब लोग पूछते हैं कि अगर आपको मतलब कोई मार नहीं रहा है, कोई ऐब नहीं है, मतलब आपको वो जिंदगी में रहना है। ओके, सो
पुनीता, आपको क्या लगता है, लाइक आपके जो लोग आते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, और ये क्या स्टेजेस हैं? ऐसा कुछ है कि पहली स्टेज है, अगली स्टेज है, ऐसे कुछ आपके साथ भी हुआ है क्या? थैंक यू। ये बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन है जो आपने दिया है वरीन, और मैं 2 मिनट लूंगी इसको समझाने के लिए भी। जब कोई इंसान इस दौर से गुजर रहा होता है, डिवोर्स इज अ मैसिव मेजर माइलस्टोन, एक लाइफ चेंजिंग माइलस्टोन है, और उसको शायद उस पड़ाव को पार करने में ही कई साल लग जाते हैं। उसको एक इट्स नॉट वन मोमेंटरी, ये ट्रॉफी मिल गई, फर्स्ट आ गए, ये एक मोमेंटरी, एक मोमेंट, एक दिन का मोमेंट होता है, लेकिन एक डिवोर्स कैन लास्ट फॉर 7 to 8 to 10 years ऑफ अ लाइफ टाइम। ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये एक कोई मोमेंट नहीं होता, पहली चीज। तो इस पीरियड ऑफ टाइम को हमको बारीकी से देखना होगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी एट अ प्री डिवोर्स स्टेज 1 प्री डिवोर्स, जब हम सोच रहे हैं अपने अंदर सोच रहे हैं अंततः कि हमें डिवोर्स के लिए जाना भी है या नहीं जाना है। हमारे रिलेशनशिप लोग आते हैं, आई एम सॉरी, तो ये भी ये मेरे लिए थोड़ा अजीब लग रहा है, बिकॉज मुझे लगा डिवोर्स रिकवरी के जैसा डिवोर्स हो गया है और अब तुम उसपे से रिकवर कर रहे हो। आप तो कुछ और ही बोल रहे हो, लाइक यू नो, मतलब अभी तक सोच ही रहे हैं एंड पीपल आर कमिंग टू यू। Absolutely. Majority, 60% of the people who come to me, and I'm giving you some statistics, आपको कुछ numbers दे रही हूँ। 60% ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो डिवोर्स सोच रहे हैं कि मैं करूं डिवोर्स, नहीं करूं, इस मेरे मैरिज में दम है भी कि नहीं, कि वो टेस्ट ऑफ टाइम चलेगा, कि मेरे फ्यूचर में ये इंसान मेरे साथ है, मैं इसको अपना साथ दूं कि ना दूं। कोविड के बाद स्पेशली चीजें बहुत बदल गई हैं। मेरे एक क्लाइंट थे जो कहने लगे, जो पहले सोचते थे कोविड के कि 4 साल और हैं, बच्चे पढ़ के निकल जाएंगे घर से, तुम एक कमरे में, हम एक कमरे में जिंदगी निकालेंगे, हमें बात नहीं करना, छत है, बस अपना अपना जिंदगी जी लो। वही लोग कोविड के बाद कहते हैं बच्चे तो चले गए अपनी जिंदगी निकालने के लिए, अब एक भी दिन मैं इस रिलेशनशिप में क्यों दूं जब मुझे इसमें फ्यूचर ही नहीं दिख रहा। मुझे अपनी जिंदगी से मैक्सिमम चाहिए। सबको अपनी जिंदगी से प्यार हो गया है और उस मोहब्बत को अपने साथ बरकरार रखने के लिए दे आर विलिंग टू वेंचर आउट ऑल्सो। पीपल, वो लोग जो उनको वैल्यूड फील करें, जिनके साथ उनको रहना अच्छा लगता है, उसके साथ रहेंगे ना। उनके साथ क्यों, जिनको हमारी कदर ही नहीं, हमारे साथ ही नहीं रहना चाहते, तो हम उनके साथ एक दिन भी क्यों वेस्ट करें। तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो 15-18 साल बाद, आई हैव वन केस, वन लेडी राइट नाउ, उसकी 18 साल की लड़की है, शी इज गोइंग थ्रू हर डिवोर्स एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। वाओ, तो आप सो ये आ गया, मतलब प्री डिवोर्स हो गया, प्री डिवोर्स, और वी हेल्प देम, हम मदद करते हैं उनकी क्लैरिटी लाने के लिए कि क्या आपको इस शादी में रहना है, व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर इस शादी में से, वो कंफ्यूजन किस चीज का है। हम लोग इतना कुछ दिमाग में सोचते हैं, क्लाउड पूरा भंवर बन जाता है दिमाग में, डिसाइड ही नहीं कर पाते। और जो एक एरिया में हम डिसाइड नहीं कर पाते, हमारी वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बाकी के एरियाज में भी अफेक्ट करने लगती है। हमारी पूरी लाइफ अनप्रोडक्टिव हो जाती है इस तरीके से, हर एरिया में वो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी छांटने लगती है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, हमें अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है रीन कि हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। एक आध गलत डिसीजन लाइफ में ले लिया और वो पूरी जिंदगी पर से हमारा ट्रस्ट हट जाता है कि क्या मैं अपने लिए सही डिसीजन ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, और वो उस पड़ाव पे जिंदगी भर निकाल देते हैं। दैट इज द स्टेज वेयर वी हेल्प देम डिसाइड कि आपको शादी में रहना है तो हम आपको मैरिज काउंसलर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी, शादी बचाइए। एक अच्छा मौका, कॉन्शियसली आप एक मौका दे रहे हैं अपने आप को अपनी शादी बचाने का। और अगर आप समझते हैं ये कि ये शादी बहुत पेनफुल, टॉक्सिक या अब्यूसिव है, हम उनकी मदद करते हैं, फिर उनको रास्ता दिखाते हैं कि ये डिवोर्स का रास्ता उनको कैसे चलना चाहिए, आगे उस रास्ते पे उनके लिए क्या क्या आने वाला है, उनको मेंटली प्रिपेयर कराते हैं ताकि वो भय में, डर में कुछ गलत डिसीजन ना ले लें।
लॉयर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, बहुत सारे तकनीकी आके जो आपको आगे पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसमें आपका कोई फायदा ना उठा ले, हम आपको उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपका ये मतलब क्या ड्यूरेशन रहेगा, लाइक अपने प्री डिवोर्स तो आपने बोला, और क्या स्टेजेस है? और ये सेकेंड स्टेज इज द ड्यूरिंग डिवोर्स। जब आपका डिवोर्स चल रहा है, बहुत से लोग हमारे ड्यूरिंग डिवोर्स में भी आते हैं। ये कुछ लोगों के लिए 6 महीने होता है और कुछ लोगों के लिए 8-8 साल तक निकल जाते हैं। वो आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। हम बहुत हॉरिबल स्टेज होती है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रिवेंज, कोर्ट में देख लूंगा, अकेले रह के दिखा दो, बहुत कुछ। हम बॉलीवुड स्टाइल में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है, उस पेन से जो निकलता है, दर्द का एहसास उसी को होता है। व्हाट पेनफुल स्टेज इज इट। आप ना लाइफ में इन्वेस्ट कर पाते हो, ना नई जॉब ले पाते हो, ना घर खरीद पाते हो, नौकरी बदल पाते, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं कर पाते। और वो अनसर्टेनिटी कब तक चलेगी, कब तक हम नहीं अपने लाइफ को प्लान करें, ये भी हमें नहीं पता होता। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग स्टेट होती है, उसको हम एक अलग तरीके से डील करते हैं, ताकि ये पेनफुल स्टेट आपका कम और कम हो सके। आपको इस कंफ्यूजन से हम बाहर निकालें कि आपको लाइफ प्लान कैसे करनी है। दिस इज द सेकेंड स्टेज। इसके टेक्निक बिल्कुल अलग होते हैं, वो लोगों का कोर्स बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, और आपने फिर तीसरा पोस्ट डिवोर्स। हाँ, कि डिवोर्स हो गया खत्म, अब वो लोग नई जिंदगी कैसे शुरू करें। चोट घात खाए हुए हम बैठे हैं, एक फुटबॉल मैच खेल के आए हैं, और अब आपके घर वाले कहते हैं दूसरा फुटबॉल मैच खेलो, दूसरी शादी कर लो, हम अपने बच्चे को अकेला नहीं देख सकते। सच तो ये है, सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशनशिप सोल्यूशन नहीं है पहले घात खाए हुए खिलाड़ी का, कि जो पहले ही रिलेशनशिप में चोट खा के बैठे हैं, उनकी दूसरी शादी करा देंगे तो क्या उसमें वही गलतियां दोबारा नहीं करेंगे? उनको सिखाया किसने कि ऐसे नहीं, ऐसे करो? ये सीख कहाँ ली? वो रिकवरी हुई कहाँ? अभी तो हम चोट खा के लौटे हैं फुटबॉल मैच खेल के, आपने स्लीव्स को नीचे किया और बोलने लगे चलो हम तैयार हैं दूसरे पारी के लिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपके डर मैं तेको बताती हूँ, मेरे साथ कुछ अलग से हुआ था, बिकॉज मेरे को अभी जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि अब ऑब्वियसली मेरा तो मतलब बहुत पुराना रह गया ना, लाइक अभी इतने साल हो गए, तो अभी वो चीज काइंड ऑफ नाउ वी कैन लाफ एट इट। यार हंसी आती है, बट मैं देखो बताती हूँ, मैं ये कहीं ना कहीं मेरे को एक रियलाइजेशन आया था, बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे मतलब जो मेरे एक्स हस्बैंड की जो नेचर थी, ठीक है, जिस हिसाब से वो नेचर थी, वो गुस्सैल और पूरा टाइम डांटते रहना, और हर चीज कंट्रोल करना, और आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, आप इधर क्यों गए, आपने इससे क्यों बात की, जैसे एक पिंजरे में डाल देते हैं आपको, अब वो पिंजरे से आप निकल ही नहीं पाते हो, आपको लगता है मैं क्या करूं, मतलब आपको सही गलत का फैसला भी लगता है कि गलत है, तो अब जैसे सही चीज है और वो ये आपके ऊपर डालेंगे कि मैंने क्यों गुस्सा किया, कि तुमने ये किया, तुम ऐसे गैस लाइटिंग। तो ये वर्ड गैस लाइटिंग का मुझे, आई एम नॉट किडिंग, मुझे नहीं मालूम था। तो ये मुझे अब जाके कुछ आई थिंक 6-8 महीने पहले वो मूवी भी आई थी गैस लाइटिंग, एंड देन आई उसके बारे में पढ़ा, मैं बोला अच्छा वो तंग करते हैं आपको, और जब आप चिढ़ के कुछ बोलते हैं तो वो कहते हैं यही तो, इसीलिए तो मैं ऐसा करता हूँ, करती हूँ, आपके ऊपर आपको फ्रेम किया जाता है, जिसको वो आपको लाइट कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, जैसे गैस जलाते हैं, आपको लाइट दिया जाता है, और आप भड़कते हो, और फिर कहते हैं देखो भड़कते हो इसीलिए तो करते हैं। और मुझे मतलब आप सोचो, इतने साल, मेरे को 2 साल 3 साल पहले ही मुझे था कि मैं छोड़ के चली जाऊँ। आई वॉज मैरिड फॉर 6 years, मैं 6 साल तक मेरी शादी रही। अब मेरा बेटा भी 4.5 साल का था जब मैं आई, जब मैंने फाइनली सोचा कि बस मतलब अब तो मैंने 2 बार कोशिश भी की कि मैं छोड़ूं इसको, कि मैं निकलूं, लेकिन ये भी मुझे ही इमोशनली ब्लैकमेल्ड मी, अगर तुम छोड़ के जाओगी तो मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। तो हम उस करके भी मैं डर गई, मैं बोला अरे यार, मैं छोटी थी, 20 साल की उम्र में शादी हुई,
26 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि बस ठीक है, क्योंकि अब वो मेरे पे नहीं है, मेरे बच्चे पे भी आ रहा था, क्योंकि वो यही माहौल से आपका बच्चा भी सहम के बड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एक गंदा माहौल सा क्रिएट हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, अब जो भी है अब बस। तो ये लोग, अच्छा, तो मैं जो पॉइंट रेस कर रही हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं छोड़ के तो आ गई, लेकिन मैंने डिवोर्स रिकवरी नहीं की। मैं एस्केप करके, जैसे था ना भाग के बस अब बस। आप मानोगे नहीं, मेरे अगले 2 या 3 बॉसेस जहां मैं काम करने गई, उनका भी वही नेचर निकला। तो तब मुझे समझ में आया कि आपको जो सॉल्व करना है, आपने अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया है, आप इसमें से भाग नहीं सकते हो। तो आप, क्योंकि आप भाग रहे हो, तो आपको सामने ऐसे ही लोग आ रहे हैं। तो मुझे उनको सॉल्व करना पड़ा, मुझे अपने आप को, उनको मैं क्या सॉल्व करती, अपने आप को जब सॉल्व करना चालू किया, रिकवरी करने गई कि नहीं, आई हैड टू डू लॉट ऑफ फॉरगिवनेस, लॉट ऑफ अपने आप को देखा कि मैं क्या चीज से भाग रही हूँ, मैं क्या स्टैंड अप नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने वो करना चालू किया, तो आस्ते 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 मेरे बॉसेस ठीक होने लग गए। एक बार तो वही इंसान जो प्रॉब्लम दे रहा था, वो भी ठीक हो गया। सो कहीं ना कहीं नाउ आई कैन मेक आउट के हाँ, मेरे में भी वो इमैच्योरिटी थी कि मुझे भी भागना था। हाँ, बट ठीक है, आई एम हैप्पी विद जो हो गया, वो अच्छा है हुआ, तो मैं अब बहुत खुश हूँ। बट हाँ, लेकिन ये मुझे एक बड़ी अजीब चीज लगी कि आपको रिकवरी की, और वही लोग हैं जो कब रिकवरी के बगैर वो लोग शादी में, फिर से शादी में बन जाते हैं। सेम प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे अगर आ सकता है एज अ बॉस ऑल्सो, तो उनको शादी में तो आ ही सकता है ना। एक पर्सपेक्टिव आपको देती हूँ यहाँ पर रील, या ईच वन ऑफ अस इज अ सोल। हम एक जीवात्मा है, एक सोल है, जो एक ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंस में जी रहे हैं। हर सोल की एक जर्नी अलग है, एक रास्ता अलग तय करना है हर सोल की। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि कंपेयर करते हैं एक दूसरे को कि उसने ऐसा किया तो तुम भी ऐसे करो, उसकी बेटी ने ऐसे किया, उसके बेटे ने ऐसे किया, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले तो कंपैरिजन करते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि सोल हमारी हर एक एक्सपीरियंस से गुजरने के लिए आई है, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस रीन के लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत अलग होंगे, क्योंकि जो सीख, जो लेसन्स मुझे लेने हैं इस लाइफ टाइम में, वो रीन से बिल्कुल अलग है। मेरे लाइफ में जो लोग आएंगे, मुझे कुछ लेसन, कुछ सीख देने के लिए आ रहे हैं। अगर मैं उनसे भागूंगी और वो सीख नहीं लूंगी, तो जिंदगी तो कहती है आपको तो लेसन तो लेना पड़ेगा। पहले टेस्ट दिया जाएगा, लेसन बाद में आएगा। ये स्कूल नहीं है कि हम आपको पहले पढ़ाएंगे फिर टेस्ट लेंगे। जिंदगी पहले टेस्ट लेती है, और उस टेस्ट में से आपको लेसन लेना होता है। तो अगर आप वो लेसन लेंगे ही नहीं, तो वो टेस्ट आपके पास बार बार आता रहेगा। कभी हस्बैंड के रूप में आएगा, कभी आपके बॉस के रूप में आएगा, कभी दोस्त के रूप में आएगा, और कभी ऐसे किसी रिश्ते के रूप में जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते। तो लेसन तो आपको वो लेना है, उस जीवात्मा, उस सोल को वो लेसन, वो रिकवरी तो करनी है। आप भागिए, देखें कितना भाग लेते हैं, लेना तो पड़ेगा। नहीं भाग सकते। कहीं ना कहीं मैं देखो एक मतलब एक अलग से एक चीज हुई थी। सो आई एम नॉट अ डिवोर्स रिकवरी कोच। मतलब मैंने डिवोर्स तो हुआ है, बट मेरा तो सक्सेस के ऊपर, तो मैं लोगों को उनका सक्सेस दिलाती हूँ। लाइक कहाँ पे उनकी गाड़ी अटक रही है, और उसको हम लिटरली रेलगाड़ी से उनको हम रॉकेट में पहुंचाते हैं। तो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, इवॉल्वमेंट। तो मेरे पास लेकिन काफी लोग आते हैं। जैसे आई डिडंट नो यू, अगर पहले पता था तो मैं आपके पास भेज देती। पता चल गया। I'll be more than happy to partner you in this. Definitely। तो जैसे अभी मेरे पास ना ये एक फैमिली आई थी काफी साल पहले। ओके, तो उनको कहा था कि शी इज ऑल्सो, मतलब लोगों को हेल्प करती है, समझाती है। तो ये 4 लोग आए थे। तो जिसका डिवोर्स हो रहा था, आई थिंक वो लड़का था, एंड द गाय, एंड उसकी सिस्टर आई थी, और उसके पेरेंट्स आए थे।
और जब बातें कर रहे हैं तो इन बातों में जनरली मैं ना बहुत चुप रहती हूँ। मैं सबका बिहेवियर ऑब्जर्व करती हूँ कि कौन क्या बात कर रहा है, क्योंकि देखो फैमिली भी अफेक्टेड हो जाती है डिवोर्स में। सिर्फ आप बोलते हो कि सिर्फ लड़का या लड़की के ऊपर नहीं है, वो फैमिली पे भी आता है। सो जब बात हो रही है तो मुझे एक चीज क्या रियलाइज हुई पुनीता, कि लड़का भी, उसकी सिस्टर भी और उसके फादर भी सब लड़के की माँ को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप इनके पीछे हुआ, इन्होंने लड़की ढूंढी, इन्होंने कहा शादी कर लो, आगे जाके भी प्रॉब्लम आई तो सब उनकी। और वो जो मदर है ना, मतलब मुझे उसका बेचारी का बॉडी लैंग्वेज मैं बताती हूँ, वो सहम गई। मतलब वो डरी हुई थी कि मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने अपने बेटे के लिए तो अच्छा ही चाहा था, और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज वो ऐसे थी, मतलब वो लिटरली वो डरी हुई थी। और फिर मैंने सो आई ऑल्सो सी लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मतलब जैसे हर एक इंसान का ना जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो है, उनका फैट लेवल कहाँ है या शोल्डर्स कैसे हैं, तो उससे भी मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है। तो मैंने फिर सबका चारों का नोट किया, और जो फादर एंड द 2 चिल्ड्रन, द सन जो ग्रूम था एंड उसकी जो सिस्टर, उनके तीनों की जो कद काठी है ना, वो काफी, मतलब शोल्डर्स जो है ना वो दे आर स्लोपिंग। देखो जिनके स्लोपिंग शोल्डर्स होते हैं ना, मालूम पड़ता है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, एंड बैक साइड जो है वो भी काफी, मतलब उसमें कुछ सपोर्ट फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ रहा है कि दे आर नॉट टेकिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो किसी और के लिए एक भरोसा नहीं बन पा रहे हैं, डिपेंडेबल नहीं है। और जो मदर है वो बिल्कुल अलग है, उसके शोल्डर्स भी मतलब ब्रॉड है और थोड़े से वाइड है ऐसे, एंड स्ट्रेट है, नॉट स्लोपिंग, एंड बैक भी उसकी है। तो कहीं ना कहीं मदर ही है जो पूरी फैमिली का बोझ लेके चल रही है, सब डिसीजन मेकिंग। तो मुझे अब समझा कि अभी इसको कैसे मैं रेस करूँ। तो मैंने अजीब सा ही हुआ, मैंने ऐसे ही कहा कि लड़के को पूछा, मैं कहा आप चाय लोगे कि कॉफी? कहते जो ठीक लगे। तो मैंने कहा जब आप एक चाय और कॉफी के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपने वो भी किसी और पे छोड़ दिया डिसीजन, तो आप अपनी जिंदगी के डिसीजन क्या लोगे? तो वो चुप हो गया, उसको समझ नहीं आई। तो मैंने माँ को पूछा, मैंने कहा जब ये आपको पूछते हैं, आप उनको पूछते हो कि घर खाने में क्या बनाना है, तो ये क्या बोलते हैं? शीशिस बोलते हैं जो ठीक लगे। मैंने कहा आज के बाद आप इनके लिए खाना, अगर ये आपको नहीं बोले कि मुझे ये खाना है, तो आप अपने बच्चे को भूखा रहने दो। He has to decide। जब तक आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन खुद नहीं लोगे, तो नहीं, अच्छा हुआ तो मेरा, बुरा हुआ तो आपका, ये तो नहीं चलेगा ना। I said, so I explained, I said आज के बाद आप अपने बच्चे को भूखा रहने दोगे, जब तक वो कुछ नहीं मांगेगा आप उसको नहीं खिलाओ। बेटे के लिए, बेटी के लिए, हस्बैंड में, आप ज्यादा खाना बना सकते हो, आप बोलो कि मैं 3-3 4-4 चीज बना दूंगी, मतलब बना देना, लेकिन इनको पूछे बगैर और इनके सुने बगैर आप खाना नहीं बनाओ। एंड यू नो समथिंग पुनीता, अभी कुछ 3 साल पहले मैं उनको मिली फिर से। अभी वो लड़के की फिर से शादी हो गई है, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया कि आप आइए प्लीज, करके आई वेंट। एंड मैंने देखा कि अभी शादी हुई है, ही इज़ वेरी हैप्पी इन हिज मैरिज। और गेस व्हाट, मैं बैठी हूँ खाना खाने, मतलब साथ में हम बैठ रहे हैं, एंड दिस बॉय ही इज गेटिंग अप, ही इज गेटिंग थिंग्स, एंड उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल गया। उसके शोल्डर्स लिटरली वर नॉट स्लोपिंग एनी मोर, वो अपना डिसीजन ले रहे, वो ऐसे स्ट्रेट बैठा है, वो पहले मतलब I could see major change in his life। तो मैंने उनकी माँ को पूछा, मैंने बोला अभी खाना कौन कहता है क्या बनाना है? बोलते नहीं, मुझे रोज वो बोलते हैं कि आज ये बनाना है और मैं वो बनाती हूँ। Can you see what, as you do anything, so you will do everything। ये मार्था बेक का कोट है, जैसे आप एक चीज करोगे वैसे आप हर चीज करोगे। तो दिस वाज
My small, I am not a divorce recovery. बहुत अच्छा और पेचीदा मुद्दा आपने यहाँ पर ये उठाया, जिसको मैं अनकवर कर रही हूँ, पेरेंटिंग को लेकर, कि कई बार हमारे जो बिलीफ सिस्टम हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं, हमारा तौर तरीका, देखने का तरीका, सोचने उठने बैठने, हाउ वी शो अप इन द वर्ल्ड, वो सब कई बार हमारे खुद के पेरेंटिंग स्टाइल से, हमारे माँ पापा ने हमारी परवरिश कैसे करी है उस पर डिपेंड करता है। बचपन से हमें क्या एनवायरनमेंट मिला है उस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा लाड में बच्चा पला हुआ है, उसका फर्क असर उसके शादी पे दिखता है और उसके आने वाले बच्चे फ्यूचर कैसे। टुडे आज जो भी हम हैं, इसीलिए हैं क्योंकि हमें ऐसी परवरिश दी गई थी, हमारी सोच वैसी ही है। आज अगर मुझे अपने बच्चे को बड़ा करना है तो मेरे पास प्रमाण क्या है, मेरे पास बेंचमार्क क्या है, वही जो मेरे माँ पापा ने मेरे साथ किया था उसी को तो हम सही मानते हैं। तो वो सोच, वो अपब्रिंगिंग, उनसे जो जेनरेशनल हमें हैंड ओवर होता जा रहा है वैल्यूज और बिलीव्स का, बहुत फर्क करता है। जब हम कॉर्पोरेट में होते हैं, जब हम अपनी कंपनी में प्रोफेशनल अरीना में होते हैं, और आज पुनीता को प्रमोशन मिला और वो सडनली सीनियर मैनेजर बन गई, मुझे उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एचआर बोलता है ये सेट ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ये पहले जिम्मेदारियां करके दिखाओ, जब खरी उतरोगी तब तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। तो मेहनत करते हैं और हमें करके दिखाते हैं, फिर प्रमोशन देते हैं। समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम जिंदगी में हमें जब प्रमोशन मिलता है, जब हम सडनली माँ बाप बनते हैं, मेहनत करते हैं और प्रमोशन मिल जाता है, और हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देता उसके ऊपर कि आज हमारे पास हमारी बेहतरीन वी हैव आवर किड इन आवर हैंड्स, हमारे हाथों में हमारा बच्चा है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग हमें किसी ने नहीं दी कि पेरेंटिंग करते कैसे हैं। हमारे लिए वही जो हमने देखा था अपने ऊपर होते हुए, वही हम उस बच्चे के साथ करने लगते हैं। ये नहीं सोचते ये सही है या गलत, या आज के जमाने के हिसाब से चलेगा या नहीं। हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे ड्रीम्स, हम वो सब बच्चों पर लाद देते हैं। नहीं, कहीं ना पुनीता, मैंने ये जो नोट किया है ना, हम पता है अपने बच्चों पे, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मदर, तो मेरा बेटा अभी 26 साल का है, और मैंने ये नोट किया कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, लाइक इवन पेरेंट्स, कि मेरे पापा ने ये किया, मम्मी ने ये किया, हम जो लेके आते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये नहीं कराएंगे, एंड एज अ रिजल्ट वो तो नहीं कराया, लेकिन और बहुत सारी चीजें और हो जाती है। सो आई ऑलवेज बिलीव कि दिस इज नॉट अ साइकिल ऑफ हमने जो किया हमने वो कराया, नहीं। ये एग्जाम अटेंड मत करना, मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया था, मैं फेल हो गया, ये मत करना, टाइम वेस्ट होगा इसमें, you don't know उसका कैलिबर, हमारा कैलिबर अलग हो सकता है ना। अमीश जो है ना, द ऑथर अमीश, मेलूहा ट्रिलॉजी लिखी है, yes. तो उनकी जो सेकंड बुक है उसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी। तो जो फर्स्ट बुक है उसमें दिखाते हैं कि वो जो किंगडम है मेलूहा का, उसमें सब चीजें रूल के हिसाब से चल रही है, रूल्स है, रेगुलेशन है, कि ये चीज है, ये इस तरीके से करनी है, इस तरीके से करनी है। सो उसको वो कहते हैं ये है ये है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी मर्यादा में रहते थे, ओके। एंड जो सेकंड बुक दिखाते हैं कि उसमें एक अलग किंगडम है जो है सूर्यवंशी, ओके। और वो सूर्यवंशी क्या है, वो जो आपको अच्छा लगे आप करो। सो कहते हैं कि ये जो चीज है वो उन्होंने वही, आई लव द वे उन्होंने जैसे ये बताया, तो कहते हैं कि आप जब रूल्स आते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हो हाँ अच्छे लग रहे हैं, रूल्स अच्छे हैं, कायदे हैं, कानून है, फिर वो कायदे कानून बढ़ते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप बोलते हो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे बिल्कुल, और थोड़े टाइम के लिए आप एकदम फ्री हो जाते हो, तो आप बोलते हो कि अरे अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लेकिन आस्ते आस्ते बगैर कायदे कानून के आपकी जिंदगी जो जहाँ थी उससे वो गिरने लग जाती है, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, और उसके बाद आपको लगता है नहीं अब मुझे रूल्स चाहिए। सो ये इसका साइकिल है। हाँ, इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन हमारी मेंटर ने हमें बताया था कि आज मैं कहती हूँ, सपोज
मैं ये पूछती हूँ आपसे, रीन, आपको कोई गेम खेलना है? जस्ट प्ले अलोंग विद मी। हाँ, आपको कोई गेम खेलना है? हाँ खेलना है, खेलते हैं। जाइए, जाके खेलिए। मतलब अगर हम गेम के रूल्स डिफाइन नहीं करेंगे तो हम गेम खेलेंगे कैसे? और कौन सी गेम, कौन सी, क्या करेंगे क्या? हाँ ना, है ना, जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे कि क्या गेम खेलना है, उसके रूल्स क्या हैं, तब तक हम वो गेम खेल नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं, तो जो फ्रीडम हमें चाहिए होता है लाइफ में, उन रूल्स के अंदर, जब तक उस फ्रेमवर्क के अंदर जब तक हम लोग फ्रीडम हमें मिल रहा है, तब तक तो बेहतरीन है। अगर ये रूल्स हट गए तो ये फ्रीडम भी बेकार हो जाती है। इट इज अ फाइन बैलेंस। जो आपने सेम चीज अभी कही कि कोई रूल चेस करता है, कोई फ्रीडम चेस करता है, सच तो ये है कि फ्रीडम उन रूल्स के अंदर ही बेहतरीन लगती है। विदाउट बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नो वर्ल्ड एग्जिस्ट्स विदाउट you can have maximum fun within the rules of the game. Yes, very true, very true. And you know पुनीता, this is actually something जो मुझे आपको पूछना था। जब लोग डिवोर्स करके मतलब निकलते हैं, जब उनको लगता है कि हम ये करें, उनको लग रहा है हम ये रूल्स छोड़ के अब हम अपने हिसाब से जिएंगे, वो अपनी एक्सपेक्टेशन ऐसी बना देते हैं। ये मुझे ये पूछना है कि बाद की जर्नी इजी नहीं है। मैं अपनी खुद की हम अपने लिए जब आप जीते हो, आपको पता नहीं कि अब करना क्या है, कहाँ जाना है। और आपका बच्चा, जैसे मेरा बच्चा जब बड़ा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, उसके बाद मुझे लगा मेरी जिंदगी में क्या है, मैं कर क्या रही हूँ। इट्स नॉट ईजी। सर्टेन रूल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड कि आपकी फैमिली क्या है। सो मैंने अपने लिए डिसिप्लिन बनाया कि मुझे ये करना है, ये करना है। सो ये चीज आई वांट, क्या आप सबको बोलते हो कि मतलब जो लोग छोड़ते हैं, डिवोर्स लेना है, वो अपने एक बहुत आइडियल किस्म के माइंडसेट से निकलते हैं। तो ये, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये है हमारा तीसरा स्टेज, पोस्ट डिवोर्स स्टेज, जिसपे हमने टच किया था। गोललेस, डायरेक्शनलेस, कि हमें करना क्या है। बहुत से लोग जब डिवोर्स पाते हैं, उनको एक नया फ्रीडम महसूस होता है। ओ आई एम सो फ्री, वो गया, जो दर्द था हमने पीछे छोड़ दिया, नाउ आई एम फ्री। लोग ट्रैवलिंग में चले जाते हैं, लोग एडिक्शंस में चले जाते हैं। एडिक्शंस भी बहुत तरीके के होते हैं। कुछ तो एडिक्शन से हम अवेयर हैं, कुछ जो बहुत सटल एडिक्शंस और जो लोग पकड़ भी नहीं पाते, मैं उनको मेंशन करती हूँ। पीपल प्लीजिंग एज एन एडिक्शन। ओह शख्स, ओके, मुझे लगा मुझे टीवी देखने की आदत है। सो हाँ, जो हमें दिखते हैं, सिगरेट, तंबाकू और इवन चेंजिंग पार्टनर्स, हैविंग सेक्स, इंडल्जिंग इन ड्रग्स, बहुत सारे तो हमें दिखते हैं। बहुत सारे सटल होते हैं जो हम शायद उस पर उंगली भी नहीं रख पाते, जैसे पीपल प्लीजिंग, जैसे कीपिंग योरसेल्फ एट द लास्ट इन द लिस्ट। हम दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच नहीं पाते। करेक्ट। बहुत सारे सटल फीचर्स होते हैं जिसके हम मोहताज हो जाते हैं। किसी को नाराज नहीं करना है, जो वो कह रहे हैं उनको खुश रखना है, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की थी एट व्हाटएवर स्टेज, राइट। ये थर्ड स्टेज में हम डायरेक्शनलेस होते हैं, हमें करना क्या है पता नहीं होता। अभी नई नई फ्रीडम मिली है तो खुशी ज्यादा है और फोकस गोल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम उनके साथ काम करते हैं कि आपको अपने लाइफ से चाहिए उस एनर्जी को चैनलाइज करना, कि हम आगे अपने लाइफ से चाहते क्या है। ये पूरे में बिखरे ना एनर्जी, उसको हम चैनल करके जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, हम उस तरफ इस एनर्जी को यूटिलाइज, चैनलाइज, प्रोडक्टिवाइज करते हैं। गोल सेटिंग ही नहीं, हम आपको बहुत सारी करियर की तरफ, पेरेंटिंग की तरफ, फाइनेंसेस की तरफ, अब हम अपने आप को पिकअप करके स्टार्ट कैसे करें। डेटिंग, नया पार्टनर आपको फिर से चाहिए, रेडी कैसे होते हैं उसके लिए। डेटिंग सीन से तो आप बहुत अरसा हो गया बाहर आ गए, अपने आप को फिर से क्या आप जज करने के लिए रेडी हैं? आर यू अलाउइंग पीपल टू कम एंड जज यू अगेन?
क्या आप रेडी हैं? लोग आपको फिर से आके रिजेक्ट करेंगे, वो रिजेक्शन झेलने की ताकत है आपके अंदर? यू आर गोइंग एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट इन द मार्केट वंस अगेन वेयर अदर पीपल विल बी जजिंग यू फॉर योर स्टोरी, फॉर योर कैरेक्टर, फॉर योर बिहेवियर। उतना ताकत, उतना गूदा, उतना सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ है आपके अंदर कि आप उस रिजेक्शन को लोगों के झेल पाए एंड स्टिल कहें आई लव माई सेल्फ एंड आई एम स्टिल वर्दी ऑफ अ गुड पार्टनर। यू नो हम पुनीता, उसके लिए रेडी करते हैं आप। मेरे को जब आप बोल रहे थे मुझे एक चीज़ याद आई। अब जैसे हम बिजनेस चलाते हैं एंड बिजनेस में अभी मार्केटिंग है तो हम मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझो यू वांट समवन फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तो आप वैसे हायर करते हो। आपको जो एक्सपर्ट चाहिए आप हम हायर करते हैं, करेक्ट, ठीक है। ऑपरेशंस चाहिए तो आप किसी ऑपरेशंस का एक्सपर्ट आप हायर करते हो। लोग मुझे कहते हैं कि सक्सेस कोच क्यों, एंड आई एम लाइक, अगर आपको खुद से मिल रहा होता तो आपको किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अटक रहे हो, जहां अटक रहे हो कोई एक्सपर्ट है जो आपको वो हेल्प कर सकता है तो आप ले रहे हो। बट इन द डिवोर्स इतना वो जैसे एक ऐसा सिचुएशन बन गया है, लोग शर्म से ही मर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये लिया, दे डोंट रीच आउट, एंड आज आई थिंक मुझे आज एक चीज सबको बोलनी है, कोई हार्म नहीं है। ये जो चीज है यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। अगर आप कोई भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में आप गुजर रहे हो, यू हैव टू रीच आउट टू दैट एक्सपर्ट। आप अपने आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको जो सॉल्व करते करते 15 साल लगेंगे, क्या आप उसको 6 महीने में 10 महीने में सॉल्व करोगे तो किसका फायदा है? और ये ही बहुत बेहतरीन, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक रीन। आई रियली अप्रिशिएट द वे यू स्टिच एंड वीव थिंग्स टुगेदर। आप कैसे पिरोते हैं बेहतरीन तरीके से चीज़ों को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस मिशन पर्पस, जिस दौर से शायद आप गुजरे हैं, मैं गुजरी हूँ, हमें कई साल लग गए उठ के आज आपके सामने बैठ के ये हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, दर्शकों से हम बोल रहे हैं। We have gone through our difficult stages to reach here, to be able to share अपने experiences जो हम आपको बता रहे हैं। और आज मेरा मिशन ये है कि हम इस I don't want to let people suffer for 8-10 years। वो 8-10 साल जो मेरे जिंदगी के बर्बाद हुए, जो मुझे लगे कि वो बचाए जा सकते थे, मैं जिंदगी में बहुत आगे होती अगर मुझे किसी ने मेंटर, किसी ने गाइड कर दिया होता कि उस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलते हैं, अपनी जिंदगी को समेटते कैसे हैं, शुरुआत दोबारा कैसे करते हैं। आज आप मुझे बोलता हुआ देख रहे हैं, मेरी आवाज मैंने पाई है वापस जो मैं खो चुकी थी। और आज ये आवाज जो उठेगी ये पूरी दुनिया सुनेगी। आज इतनी बुलंद है ये आवाज, मैं चाहती हूँ हर एक को पता चले कि डिवोर्स कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम अपनी जिंदगी की कदर करते हैं और इसलिए आज हम अपने आप को मौका दे रहे हैं एक नई जिंदगी जीने का। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उसको अल्लाह कहिए, उसको भगवान कहिए, नेचर कहिए, यूनिवर्स कहिए, जो कहिए, वन सुप्रीम पावर ने मुझे परमिशन दी है कि मैं अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जीऊं। मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। जब मैंने भी अपना ये कॉल लिया था तो कहीं ना कहीं पता है, मतलब कंजर्वेटिव फैमिली थी, हम पंजाबी नॉर्थ इंडियन, तो कहीं ना कहीं ये कहा कि आप काम नहीं कर सकते हो, या मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। और वही कहा कि आपको जो करना है शादी के बाद करना। लाइक दिस वाज क्लासिक सिनारियो। लाइक अगर आपको बाहर घूमना है, नहीं, शादी के बाद करना। अगर आपको कुछ काम करने का मन है, शादी के बाद करना। आपको मतलब मैंने इंटर्नशिप की, ये की, लेकिन झगड़ कर ही की। मतलब घर पे वो सपोर्ट नहीं था। मम्मी का था, माय मदर इज रियली नाइस, बट पापा का नहीं था और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं था। तो शादी के बाद आपको लगता है कि शादी के बाद तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि हर चीज शादी के बाद ही होने वाली है। लेकिन शादी के बाद हस्बैंड इज मोर स्ट्रिक्ट, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको नहीं मिलना। तो आप इतने मतलब इतने वो गहरे वो वेल बोलो या खड्डे में बोलो कि वो आपको समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हुआ क्या।
कि रिस्ट्रिक्शंस, बस आप बंद गए हो, आपको एक जेल में डाल दिया आपको, और वो सोने का जेल भी नहीं, एक टाइम के बाद जेल जेल होता है। फिजिकल नहीं है वो, मेंटल, अंदर हमने अपने हाँ, आप को उस मेंटल फियर में डाल के उस जेल में रखा है, बाहर से दिखता कुछ नहीं है। एंड यू नो इतना था कि जैसे अगर आप बोलने के पहले भी 4 बार सोचते हो, अच्छा ये बोलूं कि नहीं बोलूं आप, एंड यू नो उस करके ही आई टेल यू मुझे आगे जाके थायराइड क्रिएट हुआ। मेंटली हम थायराइड कितना इज ओवरथिंक करते हैं चीजों को। कि आप सही बोल ही बात नहीं पा रहे हो, आपको बोल ही लगता है, नहीं बोलूं, वो करते करते मेरा थायराइड क्रिएट हो गया, अपने आप को दबा के जो रखा इतने साल। तो मेरी एक चीज जब मेरे साथ हुई, मैं हमेशा सोचती थी मुझे कोई बचाने आएगा, कि कोई तो आए, कोई तो मुझे बचाओ, भगवान बचाओ मुझे, मतलब आप आई टू प्रे कि मुझे कोई तो बचाए। मेरे अंदर से एक बार आया, अगर तू खुद को नहीं बचाएगी तेरे को और कोई बचाने नहीं आएगा। सो आई गॉट दिस लाइन, यू नो, इफ इट हैज टू बी इट इज अप टू मी। सो दैट वाज, फिर मैंने सोचा, मैं बोला बस अब नहीं, अब जो होगा देखना है, करना है, मेहनत की। सो ऐसा नहीं कि अकेले आके बहुत इजी होता है, आसान। आज जो भी लोग डिवोर्स सोच भी रहे हैं, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने लिए, खुद के लिए काम करना है। लाइक आई रिमेम्बर, मैंने जब यू नो कॉरेस्पॉन्डेंस MBA ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई भी नहीं थी, मैं मुश्किल से तो ग्रेजुएशन किया था, तो MBA बाद में किया, वो भी आई डिड कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर मुझे जॉब भी लगी तो टेम्प, क्योंकि आपको पता है कॉरेस्पॉन्डेंस MBA, लेकिन मेहनत। फिर करते 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 अपने आप को ठीक करते करते ऐसे हो गए कि दूसरों को ठीक करने लग गए। सो दिस इज यू नो समवेयर, बट आई थिंक समवेयर यू टोल्ड मी समथिंग कि डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज। आई थिंक आपने मुझे पहले बताया था। सो दिस that resonated with me, don't compromise on values. So I want to know now your story, कि आपको ये, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। रीन, छोटे शहर से मैं भी हूँ, लखनऊ से, और पढ़ने के लिए बाहर गई। कोई पसंद आया, माँ पापा मान गए, शादी भी हो गई। कंडीशन इतनी थी कि आपको हाउसवाइफ बनना पड़ेगा, और वो सारी चीजें जिस वजह से उस लड़के ने मुझे पसंद किया था, लव मैरिज थी, वो सारी चीजों का त्याग था उस आहुति में। टू बिकम अ हाउसवाइफ आई वाज वेरी एम्बिशियस, आउटगोइंग, एडवेंचरस, इंडिपेंडेंट। वो सब छोड़ के एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मुझे लगा इतना तो प्यार करते हैं एक दूसरे से, रख लेगा ध्यान। और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आहुति दी, इमोशनल इंडिपेंडेंस की आहुति दी थी मैंने। सो आई बिलीव्ड इन लव सो मच। बट जब हम अपनी वैल्यूज को सरेंडर करते हैं, हम वो खुशी, हम वी फेल टू बी आवर ऑथेंटिक सेल्फ। हम कितने दिन अपने आप को कोई और जी के, आज मैं बोलूं कि मैं वरीन की जिंदगी जी लूं और उसके तरीके से सोच लूं और उसके तरीके से काट लूं जिंदगी, आई विल बी द मोस्ट अनहैप्पी पर्सन। ना मैं वरीन बन पा रही हूँ, ना मैं पुनीता रह जाती हूँ। तो मेरे उस ऑथेंटिक कैरेक्टर को जब मैंने दूसरे के हिसाब से ढालने की कोशिश की, me being an orange trying to be matching with mango people, neither I was an authentic orange nor an authentic mango. Somewhere in between, I was the one who was going through a lot of distress, क्योंकि हर बार मैं अपने वैल्यूज की आहुति देती जा रही थी ताकि मैं उनको खुश कर पाऊं। और क्या दे दूं और क्या आहुति दे दूं जो मैं आपको खुश कर पाऊं, उसके बाद भी वो खुश नहीं हो पा रहे थे। एंड अल्टीमेटली आई रियली डिडंट नो, खोखला, अंदर एकदम खाली महसूस होने लगा था कि आई डोंट हैव एनीथिंग मोर टू सरेंडर, व्हाट मोर कैन आई डू। फिर चीजें बद से बदतर हुई। वापस डिवोर्स के लिए हम लोग गए, वी वर्कड आउट, डिवोर्स भी 3 साल चला। और उसके बाद एक टाइम, इट वाज अ वेरी कोल्ड नाइट, लिटरली एंड एनालॉजिकली, दिल्ली में, जब आई रियली डिडंट नो कि मैं कहाँ हूँ, इतना दर्द क्यों, व्हाई मी,
बहुत से लोग जो हमारे पास आते हैं दर्द में, कहते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमने तो इतना अच्छा किया सबके साथ, व्हाई मी। उसी स्टेज में मैं भी थी शायद, घुटनों पे बैठ के उस काली अंधेरी रात में आई सरेंडर्ड टू माई गॉड एंड आई वॉज क्राइंग क्राइंग, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जॉब से फायरिंग, 2 बार फायर कर दिया गया, आई गॉट पिंक स्लिप्स, ऑफिस में घंटों दे रही हूँ, प्रोडक्टिविटी नहीं है, फैमिली का साथ छूट गया। जब आप डिवोर्स की राह चुनते हो तो आपसे हर कोई आइसोलेशन करने लगता है, हर कोई आपको अकेला छोड़ता है, कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता, फ्रेंड्स भी नहीं, घर वाले भी नहीं, दोस्त भी नहीं, ऑफिस वाले भी नहीं। मतलब सब तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है और आप अपने आप को भी रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, यू आर माई ओनली सोर्स। एंड आई वेंट ऑन माई नीज एंड आई वाज क्राइंग थ्रू द नाइट, गिव मी, शो मी सम वे आउट। और रोते रोते वहीं सो गई। उस दिन मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ लेसन मिला और वो ये था, सुबह जब उठी अपने खुद के आंसू पोंछे, मैंने कहा कोई नहीं आ रहा पुनीता तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए, you have to be the hero of your own life, take the responsibility of your life। कोई नहीं आ रहा करण जौहर की मूवी में से तुम्हें बचाने के लिए। कोई हीरो, लड़कियों को बड़ा ही किया जाता है कि कोई ना कोई होगा तुम्हारे आसपास, न बाप न भाई न पति, कोई ना कोई होगा हमेशा। कोई नहीं, कोई नहीं ना होगा। नहीं, जब तक तुम खुद के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हो, और सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं, इमोशनल इंडिपेंडेंस, मेंटल इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस, कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, मुझे कोई सेवियर नहीं चाहिए, मैं खुद की सेवियर खुद हूँ, आई एम बैलेंस्ड। वो ताकत जो हम दूसरों से चाहते हैं कि वो मुझे सपोर्ट करे, वो मुझे ताकत दे, वो मुझे आके इमोशनली हेल्प करे, मेंटली फाइनेंशियली हेल्प करे, आप वो ताकत अपने लिए बन सकते हैं, अपने लिए और किसी दूसरे के लिए भी बन सकते हैं। बन के देखिए वो ताकत किसी और के लिए, आपको फर्क पता चलेगा। That is where you will find your power when you become that strength for somebody else। अगर आप मांगते रहेंगे किसी से सपोर्ट तो आप कमजोर फील करते रहेंगे। मैंने एक्चुअली अपनी जो मेरी अपकमिंग बुक आ रही है ना, इवॉल्वमेंट, तो वो भी नाम सेम ही है, इवॉल्वमेंट, ई इज फॉर एनर्जी। उसमें मैंने पता ये कहा है कि अगर आप बुझे हुए हो, आपके अंदर का दिया बुझा हुआ है, तो आप दूसरों को रोशनी कैसे दोगे? और आपको रोशनी के लिए आपको अपने आप को पहले जलाना है। आप ये नहीं समझो कि आपको बस लोग आके सपोर्ट करते जाएंगे। कब तक? आप आज भी अगर कोई आपको कोई पैसे मांगता है कि कैसे पैसे मांग रहा है कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, मुझे ये चाहिए, आप 1 महीना करोगे, 2 महीने करोगे, आप कब तक करोगे? सो अपने लिए भी कि मुझे मांगना नहीं है, मुझे अपने आप को इतना बड़ा बनाना है, इतना ताकतवर, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि खुद के लिए भी जियो और अपने आगे पीछे लोगों को भी जियो, मतलब उनको भी उजागर करो इन अ वे। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई फर्स्ट वैल्यू योरसेल्फ। आई थिंक एंड आई सी दैट सेम थिंग इन यू पुनीता, आई सी दैट सेम थिंग इन यू। जब आप खुद को एनर्जी रखते हो, आपकी एनर्जी है, एंड ये डिसीजन तब अच्छा लगता है बिकॉज अब हम वो वहां से गुजर चुके हैं, हमको पता है हमने क्या क्या किया है, एंड अभी लाइफ ऐसी है कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि वो आपने जो कहा ना कि टेस्ट पहले आया, सीख बाद में मिली, अब वो टेस्ट भी आया, क्लास टेस्ट भी हुआ, यूनिट टेस्ट भी हुआ, बोर्ड एग्जाम भी हो गया और हम पास हो गए। अब फ्री है, अब लाइफ इज ब्यूटीफुल। सच बात तो ये है कि अगर हम पुराने तरीकों से अपनी जिंदगी जीते रहेंगे, अगर हम वही करते रहेंगे रीम जो हम करते आए हैं, तो हमको वही रिजल्ट मिलते रहेंगे जो मिलते आए हैं। अगर आज हमने तय किया कि हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, कुछ बेहतरीन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है, सिर्फ एक सोच, वन डिसीजन, वन थॉट,
आपकी जिंदगी बदल सकता है। एंड ये वो मोमेंट है जब आपकी डिसीजन आपका जिंदगी बदल सकता है। दिस इज द मोमेंट। इफ यू टुडे डिसाइड यू वांट टू चेंज योर लाइफ, नोबडी कैन स्टॉप यू। बस आपको एक नया नजरिया, एक नई सोच चाहिए, और वो सोच वही इंसान दे सकता है जो उस रास्ते पर पहले चल चुका है। करेक्ट। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो दिखाया। इसका अर्थ है कि गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े हैं, मैं गुरु के शीश लगूंगा, क्योंकि गुरु ने ही तो मुझे गोविंद का रास्ता दिखाया है। वो जो इंसान उस पर चल चुका है रास्ते पे, वही तो आपको दिखा सकता है शॉर्टेस्ट रूट, पाइथागोरस थ्योरम, टू द गॉड। करेक्ट। राइट? तो आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे इधर उधर भटकते हुए? रीच आउट करिए, मदद के लिए ओपन होइए, मांगिए, शर्म मत करिए। देयर इज ऑलवेज हेल्प अराउंड यू। मांगिए तो सही हेल्प। आप तो मांगेंगे नहीं तो खाना भी नहीं मिलता बच्चे को। बिना मांगे कैसे मिल जाएगा? बिन मांगे मदद नहीं मिलती। I'll tell you, जो मैंने आपको पहले स्टोरी बताई ना, that family who had come, तो मैंने आई रिमेम्बर उसको एक चीज कही। मैंने कहा कि आपको आप कह रहे हो ना कि माँ ने सब कुछ किया, you know, तो मैंने कहा कि शादी के मंडप में आपको क्या बांध के बिठाया था, आपको चेन्स लगा के कि आपको बैठना ही है? मैं कहा आप तो खुद ही बैठे थे ना। सो यू नो, ये जो चीज है, हमको ये भी सोचना है कि हमको हमारे डिसीजन ऐसे लेने हैं कि आगे जाके हम किसी और को ब्लेम ना करें। आपको खुद के लिए, अपने लिए इतना इवॉल्व्ड होना है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने सोच समझ के कर रहे हैं, और आगे जाके आप इसी को, यही आपकी अंदर की आत्मा की ताकत, आत्मा की सोल एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये तभी निकल के आती है। आप सब चीज सब पे डाल दोगे और बोलोगे कि मैं ताकतवर क्यों नहीं बन रहा हूँ, तो फिर ये तो बात बनी ही नहीं ना, बेसिकली, यू नो। मतलब जिम में जाके कोई और आपके बदले वेट उठाए और आपको लग रहा है कि आपके मसल बन जाए, ये तो वही वाली बात होगी। मैं ताकतवर क्यों नहीं बन रहा हूँ? क्योंकि वजन तो कोई और उठा रहा है ना आपके बदले, डिसीजन तो कोई और ले रहा है। उस डिसीजन लेने की तकलीफ कोई और बर्दाश्त करे और मसल आपके बने। वाह वाह। मुझे एक कोई तो सेंट थे, उन्होंने एक बात कही, कहते हैं हमने ना किसी को कहा कि आप ये माला जो है ना, जो 108 वाली माला नहीं होती, उसको फेराइए। आप कितनी बार, उनको था कि सिमरन करें, मतलब कोई भगवान का नाम, तो आप ये माला को, ये सिमरन का है, आप इसको माला को फेरिए। तो कुछ आए 1-2 महीने बाद, बोलते हम तो बहुत फेर रहे, हमको तो फर्क ही नहीं है। तो वो गुरु ने कहा कि फर्क कैसे नहीं है, अभी तक तो मतलब इतना फेरा। बोला कितना फेरा? बोला दिन में मतलब गिन ही नहीं सकते कितना फेरा। तो गुरु भी ही गॉट लिटिल सस्पिशियस। तो बोला आप फेर क्या, मतलब कुछ तो गिनने में तो आता है, 100 बार फेर रहे हो, 200 बार, कुछ तो आएगा। बोला नहीं, हजारों में फेर रहे हैं। तो देन ही आस्क्ड हिम आप कैसे फेर रहे हो? बोलते मैं ना गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैंने माला को ना गाड़ी के टायर की वहां पे डाल दिया है, वो अपने आप फिर जाती है। तो गिनने में ही नहीं आ रहा है, वो फेर रही है। So he's like, कहते मुझे समझ नहीं आया मैं रिएक्ट कैसे करूँ। वो The saint is like कि रिएक्ट कैसे करूँ, मतलब इसको, मतलब अभी इसको इतना, दिल्ली इतनी दूर है इसके लिए। तो करना है, अगर आपको उसका रिजल्ट चाहिए तो खुद ही करना पड़ेगा ना। खाना खुद ही खाओगे तो ही पचेगा ना, तो ही लगेगा। बाकी उन्हें खा लिया, बोलो नहीं मैं आपको देख के ही पच जाऊंगा, तो नहीं होगा ना। So very true, and I think you raised a very valid point कि जब आप मेंटरिंग प्रैक्टिस में, कोचिंग प्रैक्टिस में आते हैं, मदद मांगिए। आपके आसपास मेंटर्स हैं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन वो आपको सिर्फ सपोर्ट और गाइड ही कर सकते हैं, मैराथन के लिए रेडी कर सकते हैं, पर मैराथन आपको खुद को ही भागनी पड़ेगी। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है खुद पर काम करना।
अगर वो काम आप करने के लिए तैयार नहीं और दूसरों पर ब्लेम डालते आएंगे कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई, तो आपकी खुशी हर उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है जो आपके सामने अपनी मनमर्जी चला रहा है। अगर आपको ट्रूली पावरफुल फील करना है तो जिम्मेदारी उठाइए अपने लाइफ की और कहिए आज से मैं पावरफुल हूँ। मैंने करी होंगी गलतियां, बहुत गलतियां करी होंगी, पर आज मैं अपने आप को एक और चांस देती हूँ। मैं फिर से जिंदगी शुरुआत करने का हक रखता हूँ और यहाँ से मैं अपना पावर वापस खींचता हूँ। मैं फिर से एक बार अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ अपने ऊपर। पर्सनल डेवलपमेंट हर एक के लिए नहीं और आसान भी नहीं। अपने अंदर के डीमंस पर काम करना हर एक को अच्छा नहीं लगता और कोई कर पाता भी नहीं है, और जो कर पाते हैं उनके लिए एक नई बेहतरीन जिंदगी उनकी राह देख रही है। अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, हम आपके लिए वेट करते हैं। Yes. I would just like to end by saying कि लोग सिर्फ दो तरीके के सल्यूशन को जानते हैं जब वो एक सिचुएशन में होते हैं। या तो कहते हैं कि एडजस्ट करते रहो, कीप एडजस्टिंग, बस अपने आप को मन मारते रहो, एडजस्ट करते रहो क्योंकि आपको यही पता है यही जिंदगी है। या कहते हैं कि हम बस इसमें से भाग जाए, एस्केप कर लें। बट इसके बीच में एक और रास्ता है। आप अपनी, जैसे आपने कहा कि प्री डिवोर्स है, अपने लिए काम करो कि आप सोचो कि इसका बीच का रास्ता क्या है, कि आप अपने लिए भी बन जाओ और आपको भागना भी ना पड़े, और आप अपने जिंदगी को इतने खूबसूरती से बनाइए और अपनी जिंदगी खुद लिखिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है, और अकॉर्डिंगली आपको रास्ते और बहुत मिल जाएंगे। So I guess today has been nice, Puneeta. Thank you so much for your time. And आपका modern मीराबाई मिशन should be excellent. And मुझे चाहिए कि all सारी औरतें आपकी मॉडर्न मीराबाई को अपने जो उसका मिशन है उसको इनकलकेट करें और प्रेम से जिए, खुशी से जिए, खिल के जिए। Thank you. Just one more addition, आपने बहुत beautifully summarize किया. Today, modern Mirabai works with both men and women. The original mission was only to help the women, but वो concept जो अर्धनारीश्वर का होता है हमारे इंडियन हिस्टोरिकल कल्चर में बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। जो फेमिनिन एनर्जी जिसके अंदर ज्यादा होती है वो गिवर होता है रिलेशनशिप का, और कहीं ना कहीं वही घात खाता है। तो उस फेमिनिन एनर्जी को सलाम। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेल और द फीमेल इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट इमोशनली इफ यू आर अ गिवर, यू कुड बी अ मेल, अ फीमेल, we are willing to work with you to help you reclaim your happiness and respect back. All the 3 stages of the divorce, whether it's pre-divorce, whether it's during divorce or it's post-divorce, हमारा काम रिकवरी का है। हमारा काम आपको वापस लाना है आपकी बेहतरीन जिंदगी की तरफ। रिकवरी उसी को कहते हैं, and we are recovery specialists. And Breen is a specialist herself who brings in people, evolution, evolvement all under one roof. जब तक पानी बह रहा है उस पर काई जमती नहीं। बहते पानी की तरह बनिए, अपने आप पर काम करते रहिए, जिंदगी पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जहाँ पानी ठहर जाता है काई जमना शुरू हो जाती है। हमारी सोच बुद्धि वहीं रुक जाती है। नेचर सेज यू आर ईदर ग्रोइंग और यू आर डाइंग, बीच का कोई रास्ता नहीं। जहां आप रुक जाते हैं, नया सीखना, नए पर्सपेक्टिव, नए लोग, जहां आप नया सीखना बंद कर देते हैं, हमारा डेथ, मरना तो वहीं से शुरू हो जाता है। we have to start getting new perspectives in place. So all the best
And Breen, thank you so much once again for having me here. You have summarized it so beautifully. Thank you so much. I cannot say anything more than this. Thank you so much, Punita, for coming. And I hope, there are a lot of people who will reach out, who will actually, वो आपके साथ जुड़ के अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देंगे, जो स्पेशली जो अपनी मैरिज में हैप्पी नहीं है. एंड आई रियली होप आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप एक पुण्य का काम कर रहे हो. एंड आई वांट यू टू रियली ग्रो, रियली रियली ग्रो. एंड best wishes, Punita. Thank you so much. Thank you. I'll share my details with you. If anybody probably wants to get in touch, they can click on the link below. The details will be shared by Reen. I'll be happy to help. Definitely, definitely. Thank you guys so much, and thank you, Punita.